Guda International School Principal, I request Guda International School Principal ma'am to please be on stage. Oh, okay, sir. Distinguished dais, worthy colleagues and little lovely children. Good morning everybody. Good morning sir. काफ़ी देर से आप सुन रहे हैं क्योंकि मौसम भी साथ दे रहा है, थोड़ी उदासी मन में रह रही होगी, थोड़ा आलस आ रहा होगा, इसलिए मैं चाहूँगा कि एक बार थोड़ा सा आप लोगों में जोश, जज्बा और थोड़ा एक्टिवनेस आए, इसलिए सारे के सारे बच्चे अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके और जोरदार तालियां बजाते रहें, ताकि ताली बजाना भी स्वास्थ्य का। सारे बच्चे, टोटल बच्चे, जबरदस्त तालियां, जोरदार तालियां। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताली बजाना भी साइंटिफिक टेम्परामेंट है। इट गिव्स अ लॉट ऑफ वार्मथ टू आवर एक्टिवनेस, टू आवर इंटेलेक्चुअल लेवल। दैट्स वेरी ग्रेट, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। ओके, स्टॉप इट नाउ। कुछ ताजगी आई होगी आप लोगों के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई लाइक टू गिव दिस क्रेडिट टू द गुडा एजुकेशन हब फ्रेटर्निटी, that it is all possible because of the cooperation and interest and aptitude of the students, the willingness and the permission of the guardians to the students to participate for this assessment, and the support and permission of the management for conducting such kind of assessment examinations. But the credit does not stop here itself. All the teachers in their concerned classes have motivated to the students to participate for this prestigious national government level assessment examination. And the very special credit I would like to give to two of our gems of the school, Mr. Sachin Chuk, PGT Physics, and Mr. Pradeep, TGT Science. जोरदार तालियां दोनों टीचर्स के लिए. They have really worked very hard for making this great success to come to the school. Dear children, Anup sir has already told you about so many things, and even Rampal sir also briefed you about what is camp. And I'm sure that especially our science teachers know well that what is CSIR, because UGC is conducting examination for the eligibility for lectureship. Nowadays it is no more lecture, reader and professor, it is assistant professor, associate professor and professor. These are the three different categories of the teachers there in the colleges and universities. And to make those people eligible to apply for this assistant professorship, they will have to undergo an examination and pass that. Then only they are eligible to apply, otherwise they are not eligible. They may have PhDs, they may have MTech, MSc, whatever it is. They are not at all eligible to apply for the post of, let us say in the old terms, lectureship, in the new terms it is associate professorship, and that exam is NET JRF. And for science especially, NET JRF is being conducted, and there is only one center in Junjunu. That's not at district headquarter. It is there in the educational township, that is in Pilani. And you all might have heard Siri Pilani is an integral part of CSIR. So it's a very big scientific institute of our country. And I was really feeling myself very blessed to be there amidst the galaxy of all intellectuals, right from the minister, the honorable minister, down the line to the directors, all top guns and top brands, and that to the government ones, not any private agency to sponsor. It is not a commercialized program. It is not a commercialized program. It has got nothing to do with minting money and to gaining popularity. No, it is purely and purely to take the young scientists out from the schools and to really mentor them, to inculcate these different kind of learning environment in them. And that's what they rightly say, that the young scientists really should be given the opportunities. And very famous dictum of theirs is, catch them young. Catch them young. 10% of Indian population belongs to the teenagers and 90% of them are there in the schools. तो मैं अगर ये कहूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के बाद की जो एक स्टेप वाइज हमारे जो शिक्षाविद थे, वो
न्यू दिल्ली में इस सम्मान समारोह में उपस्थित थे, एंड द वे दे स्पोक, amazing, very amazing. I will send it into the class groups, and I would request each and every student to listen them very carefully, that how intelligent they are. Even the very minister there in the center, Dr. Jitendra Singh, is a learned fellow, great fellow, and he has got great sense of humor. He is not having, the kind of wrinkles over his forehead, very serious and having lot of snobbish attitude or very proud and all. Very down to earth person, very humble. And the way he spoke, it was really mesmerizing for all of them. And beyond that, there are many other. Mr. Sanjay Singh, the secretary, जो top level IAS होता है किसी department में, Mr. Sanjay Singh, oh my God, great speaker, and he has got great, wonderful ideas. Those are the big, thinker tanks. They are the great brains behind all these Chandrayaan and other people. So such great thinkers, and the students from some schools really were invited there, and those were the elite schools. I felt really myself very proud and privileged to be amid such kind of distinguished educationists whose dream and vision is very big. Because I always keep saying Rome was not built in a day. Nothing can be done in a day. Even you cannot pass one class in 1 day or 1 month. It takes all 365 days. Then you pass one class and move to the next class, then next class. It takes time. सीरी पिलानी एस्टेब्लिश हुई है छोटे से टाउन में, तो कोई अपॉर्चुनिटी वहां पर मिली है, इसलिए हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं. Like that only, we have already crossed one stage. Now this is second stage, and multiple such stages will take place to make this particular institution or this particular hub a great hub of learning in the entire Shekhawati. Dear children, you need to understand, जो वेदिका बलौदा को एक असेसमेंट रिपोर्ट दी गई है, वो हमारे सारे पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स को उनके लॉगिन आईडी पर सॉफ्ट कॉपी थ्रू आउट लाइफ अवेलेबल है. आप चंद्रयान 3 के अलावा इस प्रकार के बहुत सारे और यान मून पर या अलग अलग सैटेलाइट्स पर जाएंगे, एंड इफ यू बिकम द पार्ट ऑफ इट एंड यू वांट टू लुक बैक कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट व्हाट वाज माय एनालिटिकल स्किल, you can look back because it is available there on the internet. So you need to study that report very carefully. You need to make your parents aware about it. होता क्या है कि कैंप और CSIR क्या है, मैं जानता हूं इस बात को, मेरे काफी साथी भी जानते हैं कि everybody doesn't know it. Ignorance is the greatest crime. Ignorance, जागरूकता नहीं है, ये सबसे बड़ा हमारे रास्ते में रोड़ा अटकता है, सबसे बड़ा रोड़ा होता है ये. लेकिन हमने देखा है कि हमारे बच्चों को एक बार किसी चीज के बारे में थोड़ा जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए, तो उनका इंटरेस्ट, उनका एप्टीट्यूड, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही होल हार्टेडली होता है. और उसी का परिणाम है कि आज हमारे स्कूल को वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित किया गया है. तो दिस अवार्ड गोज टू ईच वन ऑफ यू, योर हार्ड वर्क, एंड आई एम श्योर दैट दिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस झुंझुनू जिले के इंक्लूडिंग बिडलास, ध्यान से सुनना सभी को, बच्चे सीधे बैठ के सुने, बेटा बहुत अच्छी बात, आप लोगों के लिए सम्मान है, ये मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए सम्मान है. झुंझुनू जिले के 40 स्कूल्स ने इस चीज के लिए अपना पूरा जोर लगाया था और पार्टिसिपेट किया था. 40 स्कूल्स झुंझुनू जिले की, जिसके अंदर केवल और केवल GIS को चूज किया गया. ये सब आप लोगों की मेहनत की बदौलत हुआ है, ये आप लोगों की मेहनत की बदौलत हुआ है ये सब. और अनूप सर मेरे साथ गए थे दिल्ली में, रास्ते में हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, और अब हमने ठान लिया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिले का जो केंद्र बिंदु होगा सीखने का, वो हम सबके साथ में यहां पर होगा. अभी तक हम लोग जाते रहे हैं, अब वो लोग यहां पर आएंगे, वो लोग यहां पर आकर के हमारे बच्चों को, हमारे टीम को, हमारे टीचर्स को नेशनल लेवल के रिनाउंड, जो टॉप लेवल पर है, उससे टॉप कुछ नहीं है, वो लोग इस गुढ़ा की सरजमी पर आएंगे. गुढ़ा एजुकेशन हब के इस लर्निंग सेंटर के ऊपर पूरे जिले के जो भी अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे अच्छे पदाधिकारी हैं, उनकी उपस्थिति में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे. उसके लिए एक चीज जरूरी है, ध्यान से बच्चे सभी ध्यान से सुने, उसके लिए एक चीज जरूरी है कि अधिक से अधिक बच्चों का इसमें पार्टिसिपेशन हो, ताकि वो गूंज वहां पर जाए, उनके पास में सारे डाटाज और सारी चीज जैसे वेदिका बलौदा की है, उस प्रकार की
वो चीज वहां पर उन लोगों को देखने को मिले कि वास्तव में गुढ़ा एजुकेशन हब अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, यहां के बच्चे बहुत ही रुचि लेते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि सबको कंपल्सरली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर सब कंपल्सरली 100% पार्टिसिपेट करें तो मैं कहता हूं कि ये अपने आप में अलग से एक अलग रिकॉर्ड होगा। और पार्टिसिपेट करने के लिए अपने क्षेत्र में कुछ, सब नहीं, कुछ लोगों का वो 400 रुपए एक बहुत बड़ी बात होती है। बेटा आपको पिकनिक टूर ले जाते हैं स्कूल की तरफ से हम लोग, सिंगल डे, उसमें 1500, 1000, 1100, 2000 रुपए हम लोग लगाते हैं, स्कूल को देते हैं। फिर पॉकेट मनी भी ले जाते हैं 500, 700, 1000 रुपए, फोन फान भी छुपा छुपू करके ले जाते हैं। कितने प्रयास, सिंगल डे में खा पी करके, उड़ा करके, फुर्र करके लौट के आ जाते हैं। अगले दिन उसका कोई इंपैक्ट नहीं रहता है। ये 400 रुपए आपके जीवन में इतना इंपैक्ट ला रहे हैं और हम हमेशा ये सोचते हैं कि इसके बदले में हमें क्या मिल रहा है। अर्निंग कम्स आफ्टर लर्निंग। फर्स्ट इट इज लर्निंग, फर्स्ट इट इज लर्निंग एंड देयर आफ्टर द अर्निंग। अर्निंग जो है वो लर्निंग का बाई प्रोडक्ट है। पहले लर्निंग, पहले अर्निंग हो फिर अर्निंग हो, ये कभी नहीं होता। सो फर्स्ट वी हैव टू पुट आवर फुट फॉरवर्ड, वी हैव टू वर्क हार्ड, बिकॉज सक्सेस हार्डवर्क के बाद मिलती है, हार्डवर्क के पहले नहीं मिलती, कहीं पर भी नहीं मिलती है। सो वी रियली नीड टू गेट आवरसेल्फ डिटरमाइंड कि नहीं, कुछ भी हो जिले में ये मौका अगर हम लोगों को मिलता है, हमारे गुढ़ा में, हमारे गुढ़ा एजुकेशन हब की एक जगह पर मिलता है जहां बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी स्कूलों के स्टूडेंट्स और राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे यहां पर आएंगे, हम लोगों को वो गाइड करेंगे, हम लोगों को डिफरेंट रिसर्च लेबोरेटरीज में, स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर्स में विजिट करवाने के लिए हमारा चयन करेंगे, हमें वो लेकर के जाएंगे, तो हम इसको लेकर के रहेंगे। ये जज्बा हम सबके अंदर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज तभी संभव है, वरना ये चीज संभव नहीं है। तो आप सबके कोऑपरेशन की जरूरत है, शिक्षक साथियों के कोऑपरेशन की भी, बच्चों को भी। और बेटा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये कोई कंपल्सन नहीं है वैसे, लेकिन मैं चाहूंगा, मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि हर एक बच्चा इस बात के लिए अपने पेरेंट्स को खुद जागरूक करे कि ये क्या है। मैं आपको उन एजुकेटर्स, उन साइंटिस्ट्स के द्वारा दिए हुए अच्छे स्पीचेस को मैं शेयर करूंगा ताकि आप उनको सुने भी और उसमें भागीदारी लें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से हर एक बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अब जितने जो बच्चे बैठे हैं वो बच्चे सारे एक बार अपने मन में ये सोच करके और मुझे बताएं कि आप में से कितने बच्चे इस चीज के लिए समर्पित हैं और एग्री हैं, और जो इस चीज के लिए 100% अप्लाई करेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके मुझे दिखाइए कि कितने बच्चे एग्री हैं, कितने बच्चे इस चीज में अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू गो? वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार। अधिकतर बच्चे 90%, 95%। चलो अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ सारे बच्चे। अनूप सर का पता नहीं क्या आपको देख करके कुछ जज्बा जग गया है। यही चीज मैंने आज जीआईएस में देखा है। ये अपने आप में यूनिक है, यूनिक है। ये यहाँ पर हर जगह नहीं मिलता है, क्योंकि काफी लंबा एक्सपीरियंस है मेरा स्टूडेंट से मिलने का। काफी स्कूलों में जाकर मैं मिलता हूं। यहाँ का जो बच्चों का जो मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन ही, आपका मोटिवेशन ही मुझे यहाँ खींच लाता है। और इसीलिए जिले का सबसे बड़ा जो इवेंट, जो एस्टैब्लिशमेंट, वो आपकी संस्था में होगा। अब मैं बिल्कुल कंफर्म हो गया हूं कि आपके हो गया है। अब हमें प्रिपरेशन करनी है आगे इवेंट की। जो इवेंट होगा उसमें आपको किस प्रकार से बेनिफिट दिलवाना है, किस प्रकार से आप सभी बच्चों को कुछ ना कुछ उसमें मिले, इस प्रकार से इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही तहे दिल से पूरा गुढ़ा एजुकेशन हब परिवार की तरफ से हमारे चेयरमैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत बहुत इनका कृतज्ञ हूं कि इतनी बड़ी घोषणा आप सब लोगों के बीच में। एक बार सर के लिए तालियां बजा दो बेटा। मैं कह रहा हूं दिल्ली के उस हॉल के अंदर डीपीएस आरके पुरम, कितनी बढ़िया बड़ी स्कूल है। आप लोगों को, मुझे नहीं पता कितना ज्ञान है, इंटरनेट को सर्च करिए। डीपीएस आरके पुरम में एमएलए, एमपी, आईएएस, आरएस के किसी भी सिफारिश से एडमिशन नहीं होता है। कैबिनेट मिनिस्टर के भी रिक्वेस्ट करने के बाद में जाकर के और इंटरव्यू वहां पर एडमिशन होता है। डीपीएस आरकेपुरम अपने आप में इतनी बड़ी प्रतिष्ठित स्कूल है, कभी आप नेट पर सर्च करो टॉप लेवल की स्कूल्स में, वहां के लोगों के साथ में हमारी टक्कर हो रही है। तो ये सब शक्ति जो हमारे को मिल रही है, एनर्जी जो हमारे को मिल रही है, ये सारी
सब लोगों की एनर्जी हमारे चेयरमैन सर के पीछे है, क्योंकि इतनी बड़ी बात इन्होंने मन से आकर के कही है। आप तो बेटा अपनी तैयारी करो। तैयारी का मतलब क्या है कि अपने माइंड को ओपन करो, कम आउट ऑफ द वेल, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यहां लोकल लेवल की बातें को, इन सबको मत सोचो, आप नेशनल लेवल की सोच रखें। नेशनल लेवल में आप आगे जाएं और अपने आप को विकसित करें, क्योंकि जमाना स्किल का है, जमाना कौशल का है। आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, कितना अच्छा यंग एज के अंदर आप वहां तक पहुंच सकते हो जहां पर हमारी काफी बेटियों ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग में अपना कंट्रीब्यूट किया है। इंडिया आज विश्व पटल पर आप सब लोगों की बदौलत यहां पर जा रहा है, तो आपको कोई सेकंड थॉट दिमाग में नहीं रखना। और मैं कितनी बड़ी बात बोली है कि हमारे सर हमारे लिए तैयार हैं, तो हमें भी तैयार रहना है। और आज इस कार्यक्रम के संचालन के लिए, इस अवार्ड के लिए, स्कूल की राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा इस रिकॉग्निशन के लिए मैं ये क्रेडिट आप सब लोगों को देता हूं। आप सब लोगों की वजह से ये संभव हुआ है, और इससे भी अच्छा बेहतर हम आने वाले समय में करते रहेंगे। और अंत में एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप सर को बहुत विशेष धन्यवाद। 2 लाइन इनके बारे में। एक सरकारी टीचर, अपन लोग सरकारी सिस्टम के बारे में सब जानते हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए। एक सरकारी टीचर अजाड़ी कला में पोस्टेड होकर के, इन्होंने अजाड़ी कला की स्कूल के लिए भामाशाहों को प्रेरित करके, ये कोई प्रिंसिपल भी नहीं है कि चलो वो है। कहते हैं ना कि आदमी में अगर जान और शक्ति होती है तो उसको पद की जरूरत नहीं होती है, वो अपनी पहचान अपने कार्यों से कर लेता है। और अपने कार्यों से एक सरकारी सिस्टम में रह करके इस यंग एज में, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उतनी इनकी एज, हमारी बातें होती रहती हैं। इस यंग एज में, इस लेवल पर ये इतना ज्यादा शिक्षा के प्रचार प्रसार और इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अपना समय निकाल करके यहाँ पर ये आए हैं, मेरे साथ दिल्ली गए हैं, जगह जगह जाते हैं और काफी लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो पूरे गुडा एजुकेशन हब की तरफ से मैं सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और सर का मैं बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप सर। आप तो सर तैयारियां करो, आप तो यहां से जाने के बाद में अपने वैज्ञानिकों को, अपने डायरेक्टर्स को कह दो कि गुडा इंटरनेशनल स्कूल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए जो भी सामग्री चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी लैब यहाँ पर 10-15 लाख रुपए के बहुत इंस्ट्रूमेंट आएंगे, वो यहाँ पर स्थापित करने की तैयारियां आप शुरू कर दो। ऐसा हमारे चेयरमैन सर ने कह दिया, तो सारे, अब कोई बचा नहीं है कहने के लिए। और प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत हंसमुख रहते हुए मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बनाएं, बिना मतलब की चीजों में भाग नहीं लें, अपने आप के जीवन को प्रकाशमान करें, आप आगे बढ़ें। आपका राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस प्रकार का मान सम्मान और बड़ी बड़ी साइंटिफिक लेबोरेटरीज में आप लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये हमारे लिए इससे बड़ी गौरव की कोई बात नहीं। थैंक्स वन एंड ऑल एट लास्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। Guda International School Principal, I request Guda International School Principal ma'am to please be on stage. Okay, sir.